اور یہ نعیم راشد صاحب جو آج کے ڈائس پہ بیٹھے ہیں، جن کا یہاں پر اعزاز کیا گیا، یہ بلکہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت ہے. یہ اپنے آپ میں ایک فرد نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انفرادیت ہے. انہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے. اور بابا حضور کے ساتھ بھی آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں. یہ ایسی نورانی شخصیت ہمارے بیچ میں موجود. اجازت صاحب چند اشعار حاضر کرتا ہوں. نعت پاک کا حکم ہوا ہے. مطلب ملائے فرمان ارشاد ہے، دین و دنیا میں اسی شخص کی شہرت، دنیا میں اسی شخص کی شہرت ہوگی. دین و دنیا میں اسی شخص کی شہرت ہوگی. دین و دنیا میں اسی شخص کی شہرت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی. اپنی کملی میں چھپا لیں گے وہاں بھی ہم کو. اپنی کملی میں چھپا لیں گے وہاں بھی ہم کو. اپنی کملی میں چھپا لیں گے وہاں بھی ہم کو. اپنی کملی میں چھپا لیں گے وہاں بھی ہم کو. جب سوانے پہ سورج کی تمازت ہوگی. جب سوانے پہ سورج کی تمازت ہوگی. بہت اچھے. نعت کا کہنا اور سننا ثواب ہے. آپ الحمدللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہیں اور یہیں سے تھوڑا سا مشاعرے کو اٹھائیں. مشورہ حضرات سے گزارش ہے. شعر حاضر کرتا ہوں ملازم. جب سوانے پہ سورج کی تمازت ہوگی، نعت گوئی کی جسارت یہ میرا فکر رساں. نعت گوئی کی جسارت یہ میرا فکر رساں. مجھ گنہگار سے کیا آپ کی مدحت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ گنہگار سے کیا آپ کی مدحت ہوگی. اور یہ شعر دیکھیں. سبحان اللہ. ہم کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف. ہم کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف. ہم کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف. ہم کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف. ہم اگر سانس بھی لیں گے تو عبادت ہو. ارے واہ 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 واہ، کیا شعر پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. شکریہ.
بہت اچھے. ایک بار پھر پڑھیں یہ شعر, بہت اچھا تو شعر. حاصل ہے ہائے ہائے. محمد کی غلامی کا شرف, ہم کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف, ہم اگر سانس بھی لیں گے تو عبادت ہوگی. بہت اچھے. شعر ملازم ہے. ذکر سرکار میں انعام رکھا ہے رب نے, ذکر سرکار میں انعام رکھا ہے رب نے, تو کسی بزم میں جانا تیری عزت ہوگی, تو کسی بزم میں جانا تیری عزت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی امید پہ دن رات گنا کرتا ہوں, 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 کب مجھے آپ کے روزے کی زیارت ہوگی, کب مجھے آپ کے روزے کی زیارت ہوگی. اور مقطع بھی مقطع ملاحظہ فرمائیں, بارگاہ اولیاء کا مشاہدہ, اور یہ میرا مقطع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کب مجھے آپ کے روزے کی زیارت ہوگی, بھیجتا ہے جو درود و سلام راہی, بھیجتا ہے جو درود و سلام راہی, اس پہ ہر حال میں اللہ کی رحمت ہوگی, اس پہ ہر حال میں اللہ کی رحمت ہوگی. بہت اچھا. دین و دنیا میں اسی شخص کی شہرت ہوگی, جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات جس انداز سے آپ حضرات نے نعت پاک کو سماعت فرمایا اور جس حساب سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء کرام نے داد و تحسین سے پڑھنے والے کو نوازا, یہ اشارہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی رات ہم سب کے لیے یادگار رات ہوگی. دوستو, بیرونی شاعر اور مقامی شاعر کو لے کے ایک بڑی فہرست ہے ہمارے سامنے, جنہیں ہم اور آپ سب لوگ سنیں گے. حضرات, مقامی شاعر ہو یا بیرونی شاعر ہو, سب بڑی کوششیں کرتے ہیں شعر کہنے کے لیے, اور بڑی مشکلوں سے شعر ہوتے ہیں. دوستو, جب تک آدمی شاعری کرتا نہیں ہے تب تک اس کو شاعری آسان لگتی ہے, لیکن جس وقت وہ شاعری کرنا شروع کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو مصرے کہنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ صاحب فکر خون روتا ہے, یاس کی وادیوں میں کھوتا ہے. صاحب فکر خون روتا ہے, یاس کی وادیوں میں کھوتا ہے. کتنی نیندیں حرام ہوتی ہیں تب کہیں جا کے شعر ہوتا ہے. کتنی نیندیں حرام ہوتی ہیں تب کہیں جا کے شعر ہوتا ہے. ابھی حنیف راہی صاحب نے بہت اچھا شعر اپنے نعت پاک میں سنایا کہ اسی امید پہ دن رات گنا کرتا ہوں.
उसी उम्मीद पे दिन रात गिना करता हूँ कब मुझे आपके रोजे की जियारत होगी। इसी हालत में हम और आप सब लोगों की हालत ये है जो इस शेर के जरिए बयान की गई कि कब मुझे आपके रोजे की जियारत होगी। ये हमारी आपकी ख्वाहिश, और जिनकी आंखों ने उस रोजे की जियारत की है उनका हाल समाज फरमाए कि उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है। समाज फरमाए तो उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है, जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है। उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है, उनकी आंखों में अजब हमने चमक देखी है, जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है, जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है। और जिसने एक बार भी वो गुंबदे खजरा देखा, महसूस करे कि जिसने एक बार भी वो गुंबदे खजरा देखा उसकी आंखों में दोबारा की ललक देखी। जिसने एक बार भी वो गुंबदे खजरा देखा उसकी आंखों में दोबारा की ललक देखी है। और वजह तकदीर मदीना न पहुंच पाने की कसक देखी है। कसक किस तरह दूर होती है हमने भी की है, आपने भी की है। शेर समाज फरमाए कि वजह तकदीर मदीना न पहुंच पाने की हर मुसलमान के सीने में कसक देखी है। और हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई, हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई, हमने वो रेल बहुत दूर तलक देखी। हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई हमने वो रेल बहुत दूर तलक देखी है। हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई हमने वो रेल बहुत दूर तलक देखी है। आइए हजरात, जिस मंजर को हमने भाई फिर हुक्म हुआ है कि बात हम उनकी आंखों में जब हमने चमक देखी है, जिनकी आंखों ने मदीने की झलक देखी है, जिसने एक बार भी वो गुंबदे खजरा देखा उसकी आंखों में दोबारा की ललक देखी है। और वजह तकदीर मदीना न पहुंच पाने की हर मुसलमान के सीने में कसक देखी है। और हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई हमने वो रेल बहुत दूर तलक देखी है। हाजियों को जो मदीने की तरफ लेके गई हमने वो रेल बहुत दूर तलक देखी है। और बात तैबा की जो करते हो तो सुन लो माजिद, बात तैबा की जो करते हो तो सुन लो माजिद, फूल तो फूल है कांटों में महक देखी। बात तैबा की जो करते हो तो सुन लो माजिद, फूल तो फूल है कांटों में महक देखी है। फूल तो फूल है कांटों में महक देखी है। बात तैबा की जो करते हो तो सुन लो माजिद, फूल तो फूल है कांटों में महक देखी है। हजरात, इसी अंदाज में आपको सुनना सुनाना है। दोस्तों, हम तो नाजिम हैं, 4 आदमी में भी सवेरा कर देते हैं और 40 आदमी को भी पढ़ा के निकल जाते हैं। हम लोगों का ये रात दिन का काम है, अपने अंदाज में करते रहते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि आप हमें सुने और दादो तहसीन से नवाजें। हमारा मकसद ये है कि जो शौराए कराम वो आपके शहर के हों या बैरून शहर से जो भी आए हुए हैं, आप हजरात उन्हें सुने, भरपूर सुने और अपनी मोहब्बतों से नवाजें। मैं तो अपना काम करूंगा, आप हजरात को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक शायर से जुड़ करके आप लोग अपनी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा रहे हैं। सूफी बिस्मिल नक्शबंदी साहब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हम लोग जानते हैं कि क्या शख्सियत है, वो कितने एहतराम से ये नाम लिया जाता है। आइए उन्हीं की बारगाह में हाजिरी के लिए मैं पहले शायर को जो आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं भाई साजिद पैकर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। साजिद पैकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अमजद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस गुनहगार को मौका दिया और शुक्रगुजार इजाजत चाहूंगा। हजरत शेर समात फरमाएं जो मेरे पीर मुर्शिद बाबा बिस्मिल नक्शबंदी साहब से क्या ताल्लुक रखते हैं। शहर में कुछ नहीं बस कारे सुखन है मेरा, शहर में कुछ नहीं बस कारे सुखन है मेरा, शहर में कुछ नहीं बस कारे सुखन है मेरा, हुस्ने अखलाक मेरे वास्ते धन है मेरा, हुस्ने अखलाक मेरे वास्ते धन है मेरा, न ये जान मेरी न दिल मेरा न तन है मेरा, न ये जान मेरी
न दिल मेरा न तन है मेरा, आपके पास ही सब कुछ है रहन मेरा, आपके पास ही सब कुछ है रहन मेरा। तुझको ही देखना और तुझ में ही गुम रहना हरदम, तुझको ही देखना, तुझको ही देखना और तुझ में ही गुम रहना हरदम, यही पूजा है मेरी, यही मनन है मेरा, यही पूजा है मेरी, यही मनन है मेरा। और हजरत मख्ता समाज फरमाए कि ये जो गौहर हैं विरासत में मिले हैं पैकर, ये जो गौहर हैं विरासत में मिले हैं पैकर, सिर्फ मकसद ही बुजुर्गों का चलन है मेरा, सिर्फ मकसद ही बुजुर्गों का चलन है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, ये थे जनाब साजिद पैकर साहब जो अपने हिस्से की सादत हासिल कर रहे थे। आइए मैं यहाँ आप ही के शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक और मोहतरम शख्सियत से मौदबाना गुजारिश करता हूँ, मोहतरम साबिर शोले साहब वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। जनाब मोहतरम साबिर शोले। आगे नहीं जाऊंगी, यहीं से बना लूंगी। हथेली सर पे मचल के रख दी, मचल के रख दी, हमारी दुनिया बदल के रख दी। क्या कहना, हथेली सर पे मचल के रख दी, हमारी दुनिया बदल के रख दी। बहुत अच्छा, वाह, क्या कहना। हथेली सर पे मचल के रख दी, हथेली सर पे मचल के रख दी, हमारी दुनिया बदल के रख दी। और इस मिजाज से हट के अगला शेर हुआ गजल का कि वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर, वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर, वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर किसी की अजमत कुचल के रख दी। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर किसी की अजमत कुचल के रख दी। वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर, वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर किसी की अजमत कुचल के रख दी। वो चंद लम्हों पे खुश हुआ पर किसी की अजमत कुचल के रख दी। 2-3 से तरन्नुम में पढ़ूंगा क्यों ये मेरा मिजाज है बाबा। जी का इजहार किया, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में उन्होंने अपनी हाजिरी पेश की। दोस्तों ये थे मकामी शायर। अब मैं बैरूनी शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पहला नाम जो मेरी फहरिस्त में है उन्हें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरात, दोस्तों पहले नाते पाक के हवाले से मैंने अपनी हाजिरी पेश की और मैं चाहता हूँ हेलो अब साहिब उसकी बारगाह में कुछ शेर पेश करते हुए मैं आज की हमारी फहरिस्त के पहले बैरूनी शायर जो हमारे दरमियान उदयपुर से तशरीफ लाए हैं, जनाब अरबाज हुसैन साहब को इन अशार के साथ दावत सुखन दूंगा, इस गुजारिश के साथ कि उन्हें भी अपनी मोहब्बतों से नवाजें। समात फरमाए चंद अशार के शहंशाह से फकीर शाह वाला कम नहीं होता। शहंशाह से फकीर शाह वाला कम नहीं होता, समंदर जिस पे नाजा वो प्याला कम नहीं होता। शहंशाह से फकीर शाह वाला कम नहीं होता, समंदर जिस पे नाजा वो प्याला कम नहीं होता। और वली कर जाते हैं पर्दा, रवां रहता है फैज उनका। वली कर जाते हैं पर्दा, रवां रहता है फैज उनका।
दिए गुल होते जाते हैं उजाला कम नहीं होता, वली कर जाते हैं पर्दा रवा रहता है फैज उनका, वली कर जाते हैं पर्दा रवा रहता है फैज उनका, दिए गुल होते जाते हैं उजाला कम नहीं होता। और सखावत शान रहमत है, सखावत ऐन बरकत है, सखावत शान रहमत है, सखावत ऐन बरकत है, निवाला देने वाले का निवाला कम नहीं होता। सखावत शान रहमत है, सखावत ऐन बरकत है, निवाला देने वाले का निवाला कम नहीं होता। और खुदा अपनों के सर, सखावत शान रहमत है, सखावत ऐन बरकत है, निवाला देने वाले का निवाला कम नहीं होता। और शेर समाज फरमाए आखिरी शेर कि खुदा अपनों के सर सजदे में कटते देख लेता है, खुदा अपनों के सर सजदे में कटते देख लेता है। बचाना हो तो फिर मकड़ी का जाला कम नहीं होता, बचाना हो तो फिर मकड़ी का जाला कम नहीं होता। खुदा अपनों के सर सजदे में कटते देख लेता है, बचाना हो तो फिर मकड़ी का जाला कम नहीं होता। आइए फिर एक बार दावत सुखन दे रहा हूं मैं जनाब अरबाज हुसैन साहब, जो राजस्थान के मशहूर शहर उदयपुर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। आइए समाप्त करते हैं उनको, जनाब मोहतरम अरबाज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। गैर सैयद अजदाद होकर गैर सैयद अजदाद होकर जहां शाद हूं मैं, गैर सैयद अजदाद होकर जहां शाद हूं मैं, मोहम्मद मुस्तफा की रूहानी औलाद हूं मैं। आज जाकर यजीदियों को समझ में आया, हुसैन कहते थे तन्हा नहीं एक तादाद हूं मैं। सब तो देते हैं अपनी जानबाजी की बस दुहाई, जब सबका हो जाए तैयार उसके बाद हूं मैं। सजदों में असर ना आया तो फिर मैंने पाया, एक कर्ज ने आकर कहा हक्कुल इबाद हूं मैं। अरबाज पर भी मुर्शिद की निगाह खास है, मुंह फेर लिया उसने तो बर्बाद हूं। चंद लिस्बत के मिसरे अर्ज करता हूं। वो किताब कहां बोलती है खामोश पड़ी है, वो किताब कहां बोलती है खामोश पड़ी है, वो किताब बेहद बोलती है मैंने पढ़ी है। किसी हंसी तर से इसका मुकाबला नहीं, अपने दिलबर की ये सूरत मैंने गढ़ी है। एक अरसे से फकत तकते रहे रूए यार, तब जाके कहीं उनसे आंख लड़ी है। महबूब व मुहिब और भी है लेकिन हम चिश्तियों की बात बड़ी थी बड़ी है। इस हयात शिकवा नहीं शुक्र करो अरबाज, अभी मौत के बाद एक पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने, वाह। मनकबत मौलाए कायनात खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मुबाहिदीन हब्लुल्लाहिल मुतीन लंगरे आसमानुल ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी तालिब। समझ हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली असल सिरात मुस्तकीम है। हुब्बे अली हुब्बे अली असल सिरात मुस्तकीम है। इस राह में अल्लाह के इनाम अजीम है। हुब्बे अली असल सिरात मुस्तकीम है। हर शय का इल्म जानते हैं कायनात में, जानते हैं कायनात में, हर शय का इल्म जानते हैं कायनात में। वल्लाह अली मुर्तज़ा शैन अलीम है। हुब्बे अली असल सिरात मुस्तकीम है।
یہ شعر مخصوص ہمارے بابا سلیم بابا صاحب کے لیے نظر کرتا ہوں.